Ah, Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. आज किसी को ज्वाइन करने में दिक्कत तो नहीं हुई? No, sir. चलिए, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? Yes, sir. ओके दीक्षा, चल लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वीक दिक्कत हो गई थी, ऐप में और इंटरनेट दोनों में दिक्कत हो रही थी, तो हम लोग फिर से शुरू करेंगे। कैप्सूल तक तो हमने उससे पहले कर ही लिया था, एंड देन विल मूव ऑन टू द डेल्टॉइड और मीडियल लिगामेंट। वो डायग्राम आपने, आई एम श्योर आपने ओवर द वीकेंड स्टडी कर लिए होंगे तीनों, जो तीन आपको भेजे थे। एक रिलेशंस का था, एक इसके, और एक सब सब टैलर जॉइंट का था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ डेल्टॉइड और मीडियल लिगामेंट। लिख लीजिए इसके बारे में। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग triangular ligament present on the medial side of ankle also. It is divided into it is divided into superficial and deep parts. Full stop. Both the parts have a common attachment above to the apex and margins of medial malleolus. Full stop. The lower the lower attachment the lower attachment is indicated by the name of the fibers. A superficial part. जो सुपरफिशियल पार्ट के तीन तीन जगह अटैचमेंट हैं इसके, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर. नंबर वन, anterior fibers or tibio-navicular fibers tibio-navicular fibers are attached to the tuberosity of navicular bone
and to the medial margin of spring ligament. Number 2, middle fibers or tibiocalcaneal. Tibiocalcanean are attached to the whole length of WHOLE, to the whole length of sustentaculum, sustentaculum, sustentaculum tali, TALI. Number 3, the posterior fibers or posterior tibiotalar are attached to the medial tubercle and to the adjoining part of medial surface of talus. So this is about deltoid ligament. याद रखिएगा, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लिगामेंट और कई बार थियरी में पूछा गया है और वाइवा में भी इसके बारे में पूछते हैं, deltoid ligament. अब ध्यान रखिए, इट हैज नथिंग टू डू विद द deltoid muscle or anything with the upper limb. Next, the deep part or anterior tibiotalar is attached to the anterior part of the medial surface of talus. Next slide. The deltoid ligament is crossed by the tendons of tibialis posterior and flexor digitorum longus. Then the third ligament is the lateral ligament.
ना लैटरल का मतलब हो गया fibula से, the upper attachment will be on the fibula. इसका डायग्राम भी मैंने आपको भेजा था, वो यहाँ पे बना लीजिएगा, इसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा. The lateral ligament consists of 3 bands. Full stop. The anterior talofibular ligament is a flat band which passes from the anterior margin of lateral malleolus to the neck of talus. To the neck of talus. Just in front of fibular facet. Just in front of fibular facet. Next slide. The posterior talofibular ligament, the posterior talofibular ligament passes from lower part of malleolar fossa of the fibula to the lateral tubercle of talus. To the lateral tubercle of talus. Next slide. Calcaneofibular ligament. Calcaneofibular ligament is a long rounded cord, C-O-R-D, which passes from the notch on the lower border of lateral malleolus to the
tubercle on the lateral side of calcaneus. It is crossed by the tendons of dash dash and dash dash. The peroneus longus and brevis. बोलिए बोलिए बोलिए. The peroneus longus and peroneus brevis. और कोई? Anyone else? चलो, it is Peroneus the longus. whole class. हाँ साक्षी, good. Anyone else? Sir, peroneus longus or peroneus brevis. Very true. क्योंकि ये lateral side में है और lateral side में दो ही muscles जाते हैं behind the lateral malleolus on the lateral side, and those are peroneus longus and peroneus brevis. Good, very good. Peroneus longus and peroneus brevis. Then we move on to the relations of ankle joint. इसका भी एक डायग्राम मैंने आपको भेजा था and it's very simple. आपको exactly मालूम है कि anterior compartment से foot में कौन से structures जा रहे हैं, lateral side में कौन से जा रहे हैं और posteriorly कौन से जा रहे हैं. और इसका डायग्राम आपको भेजा था, उसको यहाँ पे बना लीजिएगा. और as we go along with the relation, एक जो हैंड आपका लेफ्ट हैंड है, जो राइट जो लिख नहीं रहा है, उसको एंकल जॉइंट पे रख लीजिए. और जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर देखते जाएंगे हम लोग, आप उनको विजुअलाइज करिए कि these are the structures which are passing from the leg to the foot, in front, lateral side or behind the ankle. Relations. Anterior relations from medial to lateral. From medial to lateral. Tibialis anterior. Extensor hallucis longus. Anterior tibial vessels. Deep peroneal nerve. सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज. कहाँ से आपको रिपीट करना है? यहीं से शुरुआत से, मीडियल टू लैटरल. क्यों, क्या दिक्कत हुई? Tibialis, okay. Tibialis anterior. Extensor hallucis longus. Anterior tibial vessels. Deep peroneal nerve. Extensor digitorum longus. Peroneus tertius. अच्छा, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो अभी एंटीरियर रिलेशंस में जो स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने पढ़ रहे हैं, ये और कहाँ पढ़े थे हम लोग? ये और कहाँ पढ़े थे? ये पूरा स्ट्रक्चर आया था
ये सारे स्ट्रक्चर्स आए थे किसी और स्टडी से जब हम पढ़ रहे थे। वो क्या चीज थी जो हम लोग बात कर रहे थे तब ये स्ट्रक्चर्स आए थे? The soul of foot. देखो, आप हमेशा ध्यान रखो, हमने आपसे क्या कहा? वी आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द एंकल जॉइंट. These are relations which are anterior to the ankle joint. Ankle joint पे हाथ रखो तो एकदम से आंसर आ जाएगा यार. सोल में हम कहां से चले गए? आप अपने एंकल जॉइंट पे हाथ तो रखिए. हमने किस 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 और स्ट्रक्चर को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो यही इसी सीक्वेंस फ्रॉम मीडियल टू लैटरल ये छह स्ट्रक्चर आए थे. उसमें एंटीरियर टिबियल वेसल ने लिखा है तो हमने उसमें एंटीरियर टिबियल आर्टरी लिखा है. ध्यान दो तो आ जाएगा यार. यहाँ पे एक रेटिनिकुलम होता है कोई? यहाँ पे कोई रेटिनिकुलम है? सुपीरियर रेटिकुलम सर एक्सटेंसर रेटिकुलम. हाँ, सुपीरियर एंड इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनिकुलम के जो बात कर रहे थे ना कि कौन से स्ट्रक्चर्स को ये बना के रखती है. जब हम लोग we will studying the structures passing under cover of extensor retiniculum, तब इसी सीक्वेंस में ये स्ट्रक्चर्स पढ़ने थे. हाथ रखोगे वहां तो एकदम से याद आ जाएगा. नंबर 2, posterior relations. Posterior relations from medial to lateral. Tibialis posterior, flexor digitorum longus, posterior tibial vessels, tibial nerve, flexor hallucis longus, next lateral relations. Lateral relations, peroneus brevis, peroneus brevis, peroneus longus. ये इसके रिलेशन है. एक बार आप हाथ जब आप पढ़ रहे हो, ऑल दैट यू नीड टू डू इज एक हाथ को रख लीजिए और वो स्ट्रक्चर्स आपको फील भी हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे. देन मूवमेंट्स. इसके मूवमेंट में दो मूवमेंट्स हैं. एक प्लांटर फ्लेक्शन है, एक डॉर्सिफ्लेक्शन है. एक डॉर्सिफ्लेक्शन है और एक प्लांटर फ्लेक्शन है. ऐसे ही ना. तो जो डॉर्सिफ्लेक्शन होता है ना, ये एक यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी बहुत अच्छी हो तो इट इज लाइक अ क्लोज पैक पोजिशन. तो जो डिसलोकेशंस होते हैं वो कभी भी एंटीरियर डॉर्सिफ्लेक्शन में नहीं होते. डॉर्सिफ्लेक्शन में नहीं. जब भी कभी डिसलोकेशन अगर होगा तो प्लांटर फ्लेक्शन में होगा, और अगर कभी प्लांटर फ्लेक्शन में हुआ तो ये दो मैल्यूलाई में से किसी एक में फ्रैक्चर हो जाएगा, तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा. ठीक, चलिए इसको लिख लेते हैं. जैसे जैसे लिखते जाएंगे आप समझ जाएंगे.
movements. The active movements at the ankle joint are number 1, dorsiflexion. Number 2, plantar flexion. Heading down, dorsiflexion. In dorsiflexion, the forefoot, F-O-R-E, the forefoot, फुट का आगे का हिस्सा, उसको forefoot कहेंगे. The forefoot is raised करते जाएंगे और समझते जाएंगे. देखिए, the forefoot is raised and the angle between the front of leg and dorsum of foot is dash. चलो आंसर दो जल्दी से. Sir, small. Decreases. देखो ना, आपसे क्या कहा, देखिए एंगल कम होता है, ज्यादा होता है, फोरफुट और कम होता है, डिक्रीज. सर डिक्रीज. कम हो जाएगा. हाँ, तो जब आप करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा बेटा. इज डिक्रीज्ड. तो stop. It is a close pack position. CLOSE PACK. It is a close pack position with maximum congruency of the articular surfaces. Full stop. The wide anterior trochlear surface of talus loosely fits into the narrow posterior part of the lower end of tibia. Stop. There are no chances of dislocation in dorsiflexion.
then plantar flexion, in plantar flexion करते जाइए, जो लिख रहे हैं उसको करिएगा. In plantar flexion, the forefoot is depressed, and the angle between the front of leg and dorsum of foot is increased. Full stop. The narrow posterior part of trochlear surface of talus loosely fits into the wide anterior part of the lower end of tibia. Next line ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्योंकि if you do get a posterior dislocation या plantar flexion dislocation, so one of the commonest causes is the high heel of a lady's sandal. High heels they can cause, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा plantar flexion हो जाता है. ब्रैकेट में high heels cause plantar flexion of ankle joint and may cause dislocation. Then muscles producing movements at ankle joint. Muscles producing movements at ankle joint. वैसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए पेज को. पहले में लिख लीजिए डॉर्सिफ्लेक्शन, मतलब मूवमेंट है. सेकंड में मेजर मसल्स और थर्ड में एक्सेसरी मसल्स. तो लिख लीजिए मूवमेंट में डॉर्सिफ्लेक्शन major muscle tibialis anterior, accessory muscles, extensor digitorum longus, extensor hallucis longus,
पेरोनियस टर्शियस, पेरोनियस टर्शियस। नेक्स्ट मूवमेंट में प्लांटर फ्लेक्शन, मेजर मसल्स, आप बताइए मेजर मसल्स करिए, फुट को नीचे रखिए। सोलियस सर, सोलियस और गैस्ट्रोक्नेमिया। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा, वेरी वेरी गुड। यस, इट इज गैस्ट्रोक्नेमियस सोलियस, क्यों यही हील को रेस करते हैं एंड दे इनिशिएट प्लांटर फ्लेक्शन। Accessory muscles, plantaris, tibialis posterior, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus। जब भी आप रिवाइज करें जॉइंट्स में मूवमेंट्स वगैरह करिए, करके देखिए कितनी जल्दी आपको मसल्स भी याद आ जाएंगे, क्योंकि दिखेगा सारी जॉइंट्स का मूवमेंट। किताब से केवल मत पढ़िए, किताब से पढ़िए और अपने ऊपर देखिए, अपने ऊपर करके देखिए, एंड यू विल वेरी क्विकली लर्न कौन कौन से मसल्स एक्ट कर रही हैं जॉइंट के ऊपर किस मूवमेंट में। एक बार में याद ना हो कोई बात नहीं, रिपीट करिए। 2 बार में नहीं होता है, 5 बार में चाहिए, 5 बार करिए। जितनी बार आप देखते जाएंगे आपको एक एक हर बार एक मसल तो आपको याद हो ही जाएगी, कॉजिंग दैट मूवमेंट। अगर एक से ज्यादा है तो 5-6 बार आप करेंगे, आपको याद हो जाएंगे सारी मसल। एक बार में एक तो याद हो ही जाएगी हर हाल में। देन ब्लड सप्लाई, anterior tibial artery, posterior tibial artery, peroneal artery, which is a branch of posterior tibial artery. Nerve supply, deep peroneal nerve, tibial nerve. Then applied anatomy. यहाँ पे दो चीजें, एक तो मोच बहुत आती है, आपने भी देखा था एंकल जॉइंट पे मोच बहुत आते हैं, जिसको स्प्रेन कहते हैं। ये स्प्रेन यूजुअली एब्डक्शन स्प्रेन्स होते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए। नंबर 1, स्प्रेन्स ऑफ एंकल, SPRAINS, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मोच आ गई। और आपके पास कभी भी कोई केस आए स्प्रेन का, हमेशा एक्सरे जरूर करा लीजिएगा उसका। तो यूजुअली जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट 70 to 80% of sprains are usually accompanied with fracture of the 5th metatarsal. कई में देखा
और कहीं पे लोगों ने एक्सरे नहीं कराया तो 2-2 महीने के बाद दे कंटिन्यूड विद द स्वेलिंग एंड पेन, और जब एक्सरे कराया तो वो हील फ्रैक्चर दिखा। तो कभी भी आपके पास स्प्रेन आए, प्लीज उसको अच्छे से एग्जामिन करिए, इवन इफ यू आर वेरी श्योर के फ्रैक्चर नहीं है, फिर भी एक एक्सरे जरूर करा लीजिए टू रूल आउट दैट पॉसिबिलिटी, वरना पेशेंट आपके हर ट्रीटमेंट के बाद will continue to complain of pain and swelling. The sprain of ankle are almost always abduction sprains of subtalar joint, subtalar joint, SUBTALAR. अभी पढ़ेंगे इनको, इसके बाद मूव ऑन टू subtalar joint. Full stop. Sorry, comma. Although a few fibers of deltoid ligament may be injured. Next line. True sprains, TRUE, true sprain of ankle is caused by forced, FORCED, forced plantar flexion in which the anterior fibers of deltoid ligament may be injured or torn, TORN, or torn. Number 2, dislocation is very rare. Because it is because the joint is very stable. Due to the deep tibiofibular socket full stop. But when it occurs, it will always be accompanied by fracture of one of the malleoli. Next line.
optimum position to avoid ankylosis is one of slight, SLIGHT, slight plantar flexion. So with this, we complete the study of ankle joint. Simple है, it's a very simple joint, but again, जो भी joints आप पढ़ें, आप जो भी movements हैं, जो भी हो रहा, प्लीज उनको करके देखिए अपने ऊपर करिए, और एक एक करके सारी मसल भी याद होती जाएंगी, कौन सी मसल कौन सा एक्शन प्रोड्यूस कर रही है उस जॉइंट। टाइम लगेगा, एक बार में नहीं याद होगा, बार बार पढ़िए उसको और अपने ऊपर करते जाइए, तो एग्जाम में तो आपको याद हो ही जाएगा, बट आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको ये सारे मूवमेंट्स करने में और वजह ढूंढने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इसके बाद आते हैं हम लोग सब टैलर, SUBTALAR, सब टैलर और टैलोकैल्केनियन जॉइंट, टैलोकैल्केनियन जॉइंट। इसके अभी आपको डायग्राम भेजा था मैंने। ये बेसिकली एक जॉइंट है बिटवीन द टैलस एंड कैल्केनियन। सब टैलर का मतलब होता है बिलो द टैलस, बिलो द टैलस। और यहाँ जो मेन मूवमेंट होता है इस जॉइंट पे इज वन ऑफ इन्वर्जन एंड इवर्जन। इन्वर्जन एंड इवर्जन का मेन इसके ऊपर जो मूवमेंट होता है वो इसका होता है इन्वर्जन एंड इवर्जन। लिख लीजिए इसके बारे में। इट इज a plain synovial joint. It is a plain synovial joint between the concave facet on the inferior surface of the body of talus and the convex facet on the middle one-third of the superior surface of calcaneum. So this is a plane joint, right? और कितने प्लेन जॉइंट्स आपको मालूम है? प्लेन जॉइंट्स ना वो एंगुलर है, ना वो रोटेटरी है, ना उनमें सर्कमडक्शन हो रहा है। बता जल्दी से बताओ, पूछ सकते वाइवा में। चित्रंजन, साक्षी, दिव्या। सर सुपीरियर रेडियोलर जॉइंट, सर मेटाकार्पल बोन। सर सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट, इंफीरियर के साथ।
वो तो रोटेटरी है यार, उसमें तो सपिनेशन प्रोनेशन का होता है। सर बिटवीन हाँ मेटाकार्पल। साक्षी, साक्षी आप काफी पास में थी उसके आंसर के। सर एक्रोमियो क्लैविकल जॉइंट। एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। क्लैविकुलर जॉइंट। ओके जया, और कोई? और कोई? सर मेटाकार्पल जॉइंट्स। सर बिटवीन मेटाकार्पल बोन। स्टर्नोकोस्टल जॉइंट। हाँ, आप लोग बहुत पास में ही हैं। थोड़ा सा इंटरफेरेंजियल जॉइंट। इंटरफेरेंजियल जॉइंट, यस। और सर अरे रिस्ट जॉइंट। जब कभी प्लेन जॉइंट्स की बात आए ना तो श्यामलाल को याद कर लिया करिए। श्यामलाल जी कहाँ पे हैं हमारे शरीर में? इंटरकार्पल जॉइंट। कार्पल एंड टार्सल जॉइंट, जो मूवमेंट है ना बिटवीन द कार्पल एंड टार्सल बोन, दैट इज आल्सो, दोस आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ प्लेन जॉइंट्स। याद रखिए, पता नहीं कब किस लेवल पे वाइवा के आपसे पूछ लेते हैं ये चीजें, तो इतना थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखिए जो नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं, बट यू नेवर नो कब पूछ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। The bones are connected by, the bones are connected by, number one, a fibrous capsule. Number two, lateral and medial, lateral and medial talocalcanean ligaments. Talocalcanean ligaments. Number three, interosseous talocalcanean ligament. Number four, cervical ligament. Cervical ligament. See, cervical area ये है हमारा नेक वाला। अब ये लिगामेंट है सब टैलर या टैलोकैल्केनियन जॉइंट। ये जो 5-6 उदाहरण है ना, इनको कहीं पे लिख लीजिए कि ये लिगामेंट्स यहाँ पे हैं। एनाटॉमिकली these are the anatomical sites of these ligaments, ताकि आप और जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर्स हैं और जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स उसी नाम के हैं बट दे एल्सवेयर एनाटॉमिकली, आपको याद रहेंगे कि ये 5-6 ऐसी चीजें हैं जो उन जगहों पे नहीं है जहाँ पे हम सोच सकते हैं दैट दे मे बी देयर। देन मूवमेंट्स, the joint takes part in, the joint takes part in the movements of inversion and eversion. Then next one, then
nerve supply, talocalcanean nerve, सॉरी उसको काट दीजिए, काट दीजिए उसको, talocalcanean nerve को हटा दीजिए। दूसरा है talocalcaneo-navicular joint, talocalcaneo-navicular joint. This joint has some features of a ball and socket joint. Next slide. The head of talus, fits into a socket formed partly by a socket formed partly by navicular bone and partly by calcaneum. Next slide. The two ligaments that take part in forming the socket are number 1, spring ligament medially, B, medial limb of bifurcate ligament, bifurcate, bifurcate ligament laterally. Full stop. Next slide. The bones taking part in forming the joint are connected by a fibrous capsule. The movements at this joint are inversion and eversion. फिर एक छोटा सा नोट लिख लीजिए, स्प्रिंग लिगामेंट। It is
a powerful ligament full stop. It is attached posteriorly to the anterior margin of sustentaculum tali and anteriorly to the plantar surface of navicular bone. सर रिपीट कर दीजिए एक बार. Okay. Sustentaculum tali तक हो गया था. Yes sir. And anteriorly to the plantar surface of navicular bone. Full stop. The head of talus rests, R-E-S-T-S, rests directly on the upper surface spring ligament which is covered by fibrocartilage. Next slide. Spring ligament is the most important ligament for maintaining the medial longitudinal arch of foot. अब देख लेते हैं inversion and eversion of the foot. ये तो बहुत common movement है which we keep doing it. तो क्या होता है इसमें? Inversion and eversion movements of the foot. पहला लिख लीजिए inversion. Inversion. Inversion of foot. और करके देखिएगा, जैसे जैसे आप लिखते जाइएगा करिए तो आपको अभी अभी याद हो जाए. Inversion is a movement in which the medial border of the foot is raised and the sole
faces medially. Next, eversion. Eversion is a movement in which the lateral border of the foot is raised and the sole faces dash. Sir, laterally. करके देखा था जया? Did you do it? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आपके अपना आंसर हो गया वो it is facing laterally or outwards. Faces laterally. Next line. In inversion and eversion, the entire part of the foot below the talus moves together. Moves together. Full stop. The movement takes place mainly at the subtalar and talocalcaneo-navicular joints. And partly at the transverse tarsal joint. Next slide. Inversion is accompanied by plantar flexion of foot and adduction of forefoot and adduction of forefoot. करके देखिए दोनों चीज आपको दिख जाएंगे प्लांटर फ्लेक्शन भी हो रहा और एडक्शन भी होगा तब इन्वर्जन हो पाएगा करके देखा आप लोगों ने करके देखा Yes, sir. कितने ने किया कितने आप में से कितने लोगों ने Sir, किया हो रहा है. Sir, हुआ हो रहा किया. है हाँ, करिए ना जब भी आप पढ़ें अपने साथ इसको करते जाइए तो बहुत आसान हो जाता है याद करने में नेक्स्ट लाइन eversion is accompanied by dorsiflexion of the foot and abduction of the forefoot. Next slide. Inversion and eversion take place around
an oblique axis which runs forwards, upwards, and medially. First off, the obliquity, obliquity, the obliquity of the axis partly accounts for adduction, abduction, plantar flexion, and dorsiflexion. Next slide. Inversion is more free than eversion. Okay. Muscles producing inversion and eversion. Muscles producing inversion and eversion. तीन में वही बांट दीजिए. मूवमेंट, मेजर मसल, एक्सेसरी मसल. पहला मूवमेंट में लिख लीजिए इन्वर्जन. मेजर मसल tibialis anterior, tibialis posterior. एक्सेसरी में फ्लेक्सर hallucis longus, flexor digitorum longus, next moment eversion, major muscles, peroneus longus, peroneus brevis. और accessory muscle, peroneus tertius. एक मूवमेंट और भी होता है प्रोनेशन एंड सुपिनेशन का. लिख लीजिए प्रोनेशन एंड सुपिनेशन. कितने जॉइंट्स आपको मालूम है जहां पे प्रोनेशन एंड सुपिनेशन होता है? सर्विस जॉइंट. सर्विस जॉइंट पर. कहाँ पे? सर्विस जॉइंट पर. एल्बो जॉइंट. सॉरी रिस्ट जॉइंट. रिस्ट जॉइंट पे प्रोनेशन सुपिनेशन होता. करके दिखाइए. रिस्ट जॉइंट पे अपने आप करिए देखिए होता है कि नहीं होता. superior radio ulnar joint. knee joint. करके दिखाइए. करिए जिसने जो बोला करके देखिए होता है कि नहीं होता.
देखिए जब तक आप करेंगे नहीं आपको याद नहीं और Sir, सीखेंगे elbow तब जब joint. आप करेंगे। elbow joint, sir. Sir, Right? superior radioulnar joint. ओके, एक एक करके बताइए। सचिन बताइए कहाँ पे होता है? सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ओके, रंजीत आप भी कुछ बोल रहे थे? देखिए Elbow मत joint, sir. हाँ, जब तक Sir, आप elbow बोलेंगे joint. एल्बो जॉइंट। ओके, और कहाँ? एनीवन एल्स? Sir, wrist. देखो, हाँ बोलिए बोलिए। Sir, wrist joint. Sir, wrist joint. रिस्ट जॉइंट, दीक्षा रिस्ट जॉइंट करके देखिए। देखिए सुपिनेशन प्रोनेशन रिस्ट जॉइंट पे होता है या नहीं होता? चित्रंजन और दीक्षा बताइए, आपने कहा हुआ? रिस्ट पे नहीं हो रहा है। Wrist पे नहीं होता। Sir, no, sir, no. देखिए नहीं that सर, is इस beautiful। देखिए बेटा उसी से तो आप सीखेंगे। जब आप जॉइंट पढ़िए उसका मूवमेंट करिए और उसको देखिए अपनी आंखों से, तो आपको याद हो जाएगा। सचिन ने आधा आंसर सही दिया था। सचिन आपका आंसर क्या था? सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट पर होता है। सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। और इंफीरियर पे क्या होता है? Sir, inferior भी होता है। तो अब आप आए ना से, तो देखिए जब आप करेंगे ना बेटा, जब आप करेंगे तभी आप सीखेंगे। और एल्बो और किसने किसने बोला एल्बो जॉइंट? एल्बो जॉइंट किसने बोला? देखिए एल्बो जॉइंट पे आप सिर्फ दो ही मूवमेंट कर सकते हैं, इट इज अ हिंज जॉइंट, तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही होगा। ऐसे ही सीखेंगे आप बेटा, और इट विल टेक टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये आज एक ही दिन में ये सब बहुत टाइम लगता है, बट आप जितना प्रैक्टिस करेंगे अपने ऊपर, जितनी स्टडी करेंगे अपने ऊपर, आपको याद होता जाएगा। चलो, देन वी कम टू सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। These are components of movements of inversion and eversion। ये inversion और eversion का ही पार्ट है, pronation and supination। These are components of movements of inversion and eversion। दीक्षा आपका माइक ऑफ नहीं हो रहा है। Sorry, sir. Next line. In pronation and supination, the forefoot moves on talus and calcaneum. Moves on talus and calcaneum। Also, the medial border of the forefoot is elevated in supination in pronation of
the forefoot. The lateral border of the foot is elevated. Next line. These movements take place. These movements take place chiefly at the transverse tarsal joint. At the transverse tarsal joint and partly at the smaller intertarsal, tarso-metatarsal joints. Okay. Limiting factors. Number one, inversion is limited by tension of peronei, Peronei, Peronei मतलब tension of the peroneal muscles, and tension of cervical ligament, Next line. Eversion is limited by the tensions of तीन structures के tension, by the tensions of tibialis anterior, tibialis posterior, and deltoid ligament. अब इवर्जन और इन्वर्जन की जो फंक्शनल सिग्निफिकेंस है क्या है, हम लोग अक्सर करते हैं जब उबड़ खाबड़ रास्ते पे जाते हैं ना, तो फ्लैट फुट तो जाते नहीं है, किसी न किसी तरीके से या तो इन्वर्टेड फुट होगा या इवर्टेड फुट पे जाते हैं. चलिए देख लिया फंक्शनल significance. Inversion and eversion greatly help in adjusting to uneven and
सर रिपीट कर दीजिए सिग्निफिकेंस। Inversion and eversion greatly help, Greatly, greatly help the foot in adjusting to uneven and slippery, SLIPPERY, slippery ground. और ये काफी हम लोग जब कभी पानी पड़ा होता है तो एकदम फ्लैट फुट पे जाते नहीं, या तो इन्वर्टेड होगा फुट, यूजुअली इन्वर्टेड हो, लैटरल बॉर्डर पे ज्यादा जाते हैं, मीडियल बॉर्डर पे तो नहीं जाते इतना, लैटरल बॉर्डर पे बहुत होता है। अगर बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो भी लैटरल बॉर्डर पे करके फुट इन्वर्टेड हो जाता है। तो अभी हम लोग क्लास को यहाँ पे रोकेंगे, because we have another class today at 2 o'clock. और वहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे आर्चेज ऑफ फुट, आर्चेज ऑफ फुट। इसका मैंने आपको डायग्राम भेजे थे आर्चेज ऑफ फुट के। अगर आप देखेंगे तो बेसिकली 3 आर्चेज होती हैं। अगर आप फुट को अपने देखिए, फुट के ऊपर हाथ लगाइए, तो एक आपको मीडियल बॉर्डर पे कॉन्केविटी फील हो रही है, मीडियल साइड ऑफ फुट में आपको एक कॉन्केविटी फील हो रही है। अगर मीडियल साइड ऑफ फुट पे ये Yes. हो रही है ना, ऐसे कॉन्केविटी फील हो रही है ऐसे, Yes, sir. और एक हल्की उससे कम कॉन्केविटी लैटरल साइड में फील होगी, lateral side of foot. So these concavities are because of the arches of foot. इसमें medial longitudinal arch ज़्यादा pronounced है as compared to the lateral longitudinal arch. Longitudinal मतलब लंबाई में। और ऐसे ही 2 transverse arches हैं, 2 transverse arches हैं which are incomplete without each other. एक फुट में आधी या दूसरे फुट में आधी, तो इस तरीके से वो डोम शेप आएगी। अब ये ट्रांसवर्स आर्च कंप्लीट हो गई जब दोनों फुट एक साथ आए, बिकॉज इसका एक सिरा तो फुट को टच कर रहा है, ये वाले को नहीं, इसको ये कंप्लीट करती है, ये उसको कंप्लीट करेगी। Then we'll come to arches of foot. Now arches of foot is very very important. Invariably एग्जाम में एक आर्च ऑफ फुट पे जरूर आता है, और आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में और जब आप सेकेंड ईयर में क्लिनिक्स में जाएंगे, यू विल कम अक्रॉस सम डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू आर्चेज ऑफ फुट, आर्चेज ऑफ फुट। तो इसको बहुत ध्यान से, अभी आपके पास टाइम है, डायग्राम को देख लीजिएगा। और आर्चेज ऑफ फुट जो पढ़ेंगे तो उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। कभी भी कोई आर्च बनती है ना, जैसे आर्च बनी, तो एक उसका एंटीरियर एंड होगा, एक पोस्टीरियर एंड होगा, और ये जो लंबाई में बन रही है ना, ये दे विल फॉर्म द पिलर। और जो टॉप मोस्ट पार्ट है, तो सबसे टॉप पार्ट दैट इज कॉल्ड द समिट,
तो जब हम लोग आर्चेस पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि एंटीरियर एंड कैसे बनता है, पोस्टीरियर एंड कैसे बनता है, एंटीरियर पिलर कैसे बनता है, पोस्टीरियर पिलर कैसे बनता है, और समिट पे क्या। तो एन आर्च इज ऑलवेज फॉर्म लाइक दिस। आर्च ऐसे बनती है, तो ये इसका एंटीरियर एंड होगा, पोस्टीरियर एंड, एंटीरियर पिलर एंड द समिट। देख लीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत अच्छे डायग्राम्स हैं वो। तो वी विल मीट अगेन एट 2 o'clock. चलिए, देन वील क्लोज आवर class today. Meet again at 2 o'clock.